ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ باہر نیلے آسمان پر سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں نے قبضہ کر کے موسم کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ کھانا تیار کر چکی تھی جب اچانک ہی اس کی ساس نے کچن میں داخل ہوتے سوجی کے حلوے کی فرمائش کر ڈالی۔ بہو، سب گھر پر ہیں اور موسم بھی اچھا ہے، سوجی کا حلوہ بھی بھون لو۔ ہانڈی کے ڈھکن کو اٹھاتے ہوئے اس کی ساس نے پاس کھڑی ماورا کی طرف دیکھا، جو ہاتھ میں ہرا دھنیا لیے سالن میں ڈالنے کھڑی تھی۔ اس کی ساس نے ماورا کے سامنے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو ماورا نے ہرے دھنیے کی پیالی کو اپنی ساس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود جی اچھا کہہ کر کیبنٹ سے حلوے کا سامان نکالنے لگی۔ ہرا دھنیا سالن میں ڈالنے کے بعد انہوں نے ہانڈی پر ڈھکن رکھا اور خود دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ ماورا نے پلٹ کر اپنی ساس کی جانب دیکھا، پھر ہولے سے سر جھٹک کر سوجی کے شاپر کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بہو، سلاد اور چٹنی بھی تیار ہے نا؟ اس کی ساس پلٹ کر اس سے استفسار کر رہی تھی۔ جی تیار ہے، ماورا نے تابیداری سے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ وہ سبھی گھر والے اس وقت لاؤنج میں محفل سجائے بیٹھے تھے۔ ویکینڈ تھا جس کی وجہ سے اس کی شادی شدہ نند بھی آئی ہوئی تھی۔ ماورا اب ایک طرف کڑاہی میں سوجی بھون رہی تھی تو دوسری طرف اس نے چاشنی کو چولہے پر چڑھا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سوجی کے بھوننے کی دھیمی دھیمی خوشبو کچن سے نکل کر لاؤنج میں پھیلنے لگی۔ اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جیسا کیسر کی مرتبہ کیا تھا اس بار بھی ویسا ہی کریں گے۔ صبا کے بولنے کی آواز کچن میں موجود ماورا کے کانوں سے ٹکرائی تو لاشعوری طور پر ماورا کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے تھے۔ امی، انسان کو زندگی گزارنے کی گن آتے ہوں تو سمجھ لیں انسان کی زندگی آسان ہے۔ اب آپ خود ہی ماورا اور کیسر کو دیکھ لیں، کیسی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سارے چونچلے تو بس شادی سے پہلے کے ہوتے ہیں۔ ایک بار شادی ہو جائے تو پھر نئی باتوں اور نئے رشتوں کو سنبھالنے میں ہی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ پرانی باتیں خود بخود محو ہو جاتی ہیں۔ رشتہ بہت اچھا ہے، نبیل کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بس جو باتیں ہم نے پہلے کی تھیں وہی باتیں اب کریں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ صبا نے جیسے عتیقہ بیگم کی ساری فکر کو لمحوں میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر بھی ہماری پہلی رشتہ داری ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی بدمزگی ہو جائے۔ عتیقہ بیگم ابھی بھی تذبذب کا شکار تھیں۔ اس بار صبا کی مدد کے لیے کیسر نے اپنے فون کی اسکرین سے سر اٹھایا اور ماں کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، صبا، یہ سارے رسم و رواج تو شادی سے پہلے اور رشتہ طے کرنے کے دوران ہوتے ہیں۔ ایک بار دلہن رخصت ہو کر گھر آ جائے اور اسے تحفے میں وہی دیا جائے جو میں نے ماورا کو دیا تھا، یقین کریں بولنے کے لیے پیچھے کچھ لفظ بچتا ہی نہیں۔ آخر کو جو تحفہ میں نے ماورا کو دیا تھا وہ کوئی عام تحفہ تو نہیں تھا۔ کیسر نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے بات کے اختتام پر ہولے سے کہکہا لگا کر ماں اور صبا کی طرف دیکھا اور پھر محفل کشتے زعفران بن گئی۔ لیکن جانے کیوں کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی ماورا کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی تھی۔ کچن اور لاؤنج سے متصل کھڑکی ماورا کو لاؤنج میں بیٹھے افراد کے لہجوں اور لفظوں کے ساتھ ساتھ چہرے کے استہزائیہ تاثرات کو بخوبی دیکھنے میں مدد دے رہی تھی۔ دفتن عتیقہ بیگم کی نظر لاؤنج کی کھڑکی سے ہوتی کچن میں کھڑی ماورا کی طرف اٹھی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی تینوں اولادوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں ہی اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ایک بار پھر فلک شگاف کہے لگا رہے تھے، پھر وہی بلند آوازیں۔ اس نے آنکھوں کے سامنے چھائی دھند کو زور سے اپنے دوپٹے کے پلو سے رگڑا اور ابلتی ہوئی چاشنی کے پانی کو جیسے ہی کڑھائی میں انڈیلا تو گرم گرم حلوے کے چھینٹے اڑ کر اس کے ہاتھ سے ٹکرائے تھے۔ ماورا نے جلدی سے دیگچی کو شیلف پر رکھا اور اپنے سرخ ہوتے ہاتھ کی جلد کو ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا، لیکن یہ تکلیف تو اس تکلیف کے سامنے بہت کم تھی جو کچھ دیر پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ ماورا نے چولہے کی آنچ کو کم کیا اور چمچہ پکڑ کر ہلانے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی یا پھر
आंसुओं के बायस धुंध का तस्वर था। चमचा उसके हाथ में आने की बजाय जमीन बोस हो गया। अरे मावरा, क्या कर रही हो? अतीका बेगम कहते हुए किचन में दाखिल हुई। फिर उनकी नजर मावरा पर पड़ी जो जमीन पर पड़े चमचे को उठा रही थी। बस, तुम लड़कियों का यही तो मसला होता है। जरा सा एक्स्ट्रा काम क्या कह दिया तुमने तो। अतीका बेगम बड़बड़ाते हुए आगे आई और जोर से चूल्हा बंद किया। फिर जैसे ही खश्मगीन नजरों से मावरा की तरफ देखा तो उनकी नजर उसके सुर्ख हाथ पर पड़ी तो उनकी बड़बड़ाहट फौरन ही बंद हो गई। फिर हाथ जला लिया। कोई तो काम ढंग से और ध्यान से कर लिया करो मावरा। कहते हुए अतीका बेगम पलटी और चमचे में घी ले आई। खुद अपने हाथ मावरा के जले हुए हाथ पर घी लगाया। जाने क्यों आंसू आंखों से कतार दर कतार निकले चले जा रहे थे। अभी ठीक हो जाएगा, तुम तो बच्चों की तरह रोने लग गई, अतीका बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। और रोती हुई मावरा ने उनकी तरफ देखा। उसकी बेतासुर सी निगाहों से अतीका बेगम को अजीब सा एहसास हुआ था। तुम ऐसा करो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं खाना निकाल लूंगी। अतीका बेगम ने दिल ही दिल में सबा को 1000 सलावातें सुनाते आम से लहजे में मावरा से कहा था। कोई और वक्त होता तो शायद मावरा उनकी बात ना मानती, लेकिन इस वक्त वो खुद भी उन सबकी नजरों के सामने से हट जाना चाहती थी, या शायद वो इस वक्त उन सबकी शक्लें नहीं देखना चाहती थी। यही वजह थी कि वो सर को अज़बात में हिलाते अतीका बेगम के सामने से हटकर किचन का दरवाजा पार कर गई। कमरे में आकर गिरने के से अंदाज में अपने बेड पर बैठी। साइड टेबल पर रखे फ्रेम में मौजूद अपनी और कैसर की शादी की तस्वीर को देखते हुए मावरा सोचे जा रही थी। इंसान को ट्रिक्स आनी चाहिए तो क्या नहीं हो सकता। ये जुमला कैसर का मनपसंद जुमला था, जिसे वो दिन में कई बार बोलता। ट्रिक्स में और धोखा देने में बहुत फर्क होता है मिस्टर कैसर। ये ट्रिक्स नहीं, ये धोखा है जो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को उम्र भर देते रहते हैं। इस धोखादही को अपनी चालाकी समझते हैं। ये गुर तब तक कारगर साबित होता है जब तक कोई हमें अंदर से झंझोड़ ना दे, और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन से एक बार ज़मीर पर महसूस होने लगता है, और फिर हर बार हर साथ गुजरने के साथ साथ उस पर बार कम होने के बजाय बढ़ता चला जाता है, और ज़मीर पर बोझ को लिए जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। मावरा बड़बड़ा रही थी और फिर पुश्त के बल बेड पर गिर गई थी। अभी कौन सा बरसों बीत चुके थे जो वो सब भूल जाती। नहीं, जो कुछ हुआ था उसके लिए बरसों भी कम थे। आंसू उसकी आंखों से निकलकर कनपटियों से होते उसके बालों में गुम होते जा रहे थे। माजी का हर लम्हा अब मुजस्सम होकर उसकी आंखों के सामने आनकर ठहर रहा था। कितनी ही बार उसने खुद को उन लम्हों की कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन मावरा ने बेचैनी से करवट ली थी और पास पड़े तकिए को उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया। उसे याद आ रहा था, उसे एक एक बात याद आ रही थी। वो सब जब उस दिन वो कॉलेज से घर लौटी थी और अस्सलामुअलैकुम। घर में दाखिल होते ही मावरा ने ऊंची आवाज में सलाम किया और लाउंज के सोफे पर अपने कंधे पर लटकते बैग को उछाल कर गिराया, और खुद भी धम के अंदाज में सोफे पर बैठकर अपनी गर्दन को सोफे की टेक पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। किचन से निकलती आसफा बेगम को तो मानो बेटी की अंदाज देखकर गुस्सा आ गया था। मावरा, तंबीही अंदाज में कहती हुई आसफा बेगम बेटी के करीब आई थी। सच में अम्मी, मैंने सलाम किया था, लेकिन शायद आप किचन में थीं तो आपने। मां को शोलाबार नजरों से अपनी तरफ देखते देखा तो मावरा जल्दी से बोल उठी थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मां की नजरों के ताकुब में देखा तो जल्दी से अपने औंधे पड़े बैग को घसीट कर अपने पास कर लिया। पता नहीं तुम कब बड़ी होगी मावरा, आसफा बेगम के लहजे में जहां भर की बेचारगी दर आई थी। अम्मी, इतनी बड़ी तो हो गई हूं, अभी भी आप कह रही हैं मैं कब बड़ी होंगी। कहते हुए मावरा हंसने लगी थी। उसे यूं हंसता देखकर आसफा बेगम के लब भी मुस्कुराने लगे थे। तुम कभी नहीं सुधर सकती। उन्होंने एक मोहब्बत भरी नजर बेटी के चेहरे पर डाली।
اس سے پہلے کہ ماورا ان کی اس بات کا جواب دیتی، کمرے سے نکلتے ہوئے امان صاحب کے کانوں سے اپنی شریک حیات کا فکرہ ٹکرایا۔ ارے بھائی بیگم، میری بیٹی کے معاملے میں زیادتی مت کیا کریں، میری اتنی پیاری اور فرما بردار بیٹی ہے، اور آپ ہیں کہ اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ امان صاحب نے کہہ کر ماورا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو ماورا جلدی سے بھاگ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ بس آپ کے اسی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو میڈم کی زندگی میں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں۔ آصفہ بیگم کو ہمیشہ کی طرح امان صاحب کے بے وقت لاڈ پر غصہ آیا تھا۔ اچھا، اب ہمیں کھانا ملے گا یا پھر ڈانٹ ہی پر گزارا کرنا پڑے گا؟ اس سے پہلے کہ آصفہ بیگم کچھ بھی کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، امان صاحب نے کھانا لگانے کی فرمائش کر ڈالی۔ لگا رہی ہوں میں کھانا، اور اپنی اس لاڈلی کو بھی کہہ دیں یونیفارم چینج کر کے فریش ہو کر آ جائے۔ آصفہ بیگم نے امان صاحب کے کان میں کھسر پھسر کرتی ماورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ شکر ہے پاپا آپ ٹھیک ٹائم پر آ گئے، ورنہ آپ کی ہنٹر بیگم نے مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر ہی مار دینا تھا۔ آصفہ بیگم کے نظر سے ہٹتے ہی ماورا نے سکون کا سانس لیا۔ امان صاحب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا، اب باقی باتیں بعد میں، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، ورنہ اپنی ممی کا پتہ ہے نا۔ امان صاحب نے اسے ڈرایا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی سبک روی سے گزر رہی تھی جب فیصل بھائی کے سسرال سے ایک رشتہ ماورا کے لیے آیا۔ امان صاحب نے رشتے کی بات کرنے سے پہلے ہی فیصل بھائی کو منع کر دیا تھا۔ بھائی ماورا بہت چھوٹی ہے اور ابھی پڑھ رہی ہے، اس لیے تم نمرا سے معذرت کر لو، زمان صاحب نے بہو کا نام لیتے ہوئے کہا۔ فیصل اپنی فیملی کے ہمراہ عمان میں مقیم تھا، لیکن رشتہ بہت اچھا ہے۔ نمرا کی خالہ نے خود نمرا سے بات کی ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، اور اس سے پہلے کہ فیصل اپنی بات مکمل کرتا، امان صاحب نے اس بات کو پھر سے کاٹ دیا۔ بیٹا کہا نا، ماورا بھی بہت چھوٹی ہے۔ امان صاحب کے کہنے پر فیصل نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا، لیکن بعد میں وہ یہ بات ماں سے کہے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ رشتہ بہت اچھا ہے امی، ہماری ماورا اپنے پاس رہے گی، دیکھے بھالے لوگ ہیں، نمرا کی سگی خالہ ہیں، آپ پاپا کو سمجھائیں۔ گھر بلانے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ انہیں چائے پر انوائٹ کر لیں، اگر آپ کو اور بابا کو وہ لوگ اچھے لگیں تو بات آگے بڑھائیں گے، نہیں تو انکار کر دیں گے۔ فیصل نے مدبرانہ انداز میں ماں سے کہا۔ بیٹا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن امی، ماورا کا خاندان میں کوئی رشتہ نہیں، یا تو سب عمر میں بڑے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، یا پھر سب بہت چھوٹے ہیں۔ حقیقت پسندی سے بات کریں گے تبھی اچھا ہوگا، ابھی تو چھوٹی چھوٹی کہہ کر ٹائم گزار دیں اور بعد میں پریشان ہوتے پھریں گے۔ آپ پلیز بابا سے بات کریں۔ فیصل کی بات میں دم تھا، آصفہ بیگم خود بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، اگر رشتہ اچھا ہے تو پہلے رشتہ طے کرنے اور منگنی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، شادی ہم ماورا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آصفہ بیگم بیٹے کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں اور 1-2 دن میں تمہیں بتاتی ہوں، آصفہ بیگم نے کہتے ہوئے گفتگو کو سمیٹا، اور پھر فیصل سے بہو اور پوتے کی بات کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی۔ وہ لوگ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں، بلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر فیصل ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اکثر والدین چھوٹی ہے کہہ کر اپنی بیٹیوں کے آنے والے رشتوں کو انکار کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں خود ہی سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آصفہ بیگم نے شوہر کے سامنے چائے کا کپ رکھتے سمجھانے کے سی انداز میں کہا، اور خود بھی ان کے سامنے پڑے صوفے پر آن بیٹھی۔ ابھی ماورا 3rd ایئر میں ہے، اور امان صاحب نے ذرا سا جھک کر چائے کا کپ اٹھاتے کہا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کی نظروں میں وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا خود اب ایک بچے کا باپ ہے، لیکن ہم بھی فیصل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ فیصل تو ابھی بچہ ہے۔ یہی تو ماں باپ کا دل اور فطرت ہوتی ہے، بیٹیوں کے معاملے میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے،
और मावरा के बारे में तो। आसफा बेगम बात करते करते रुक गई। बेटी के जिक्र पर मोहब्बत से उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। यूं लगता है अभी कल ही की तो बात है जब नर्स ने नन्ही सी परी को मेरी गोद में दिया था, जब हमारी बेटी ने पहला कदम उठाया था। लेकिन हकीकत तो ये है, ये ना कुछ दिनों की बात है और ना ही चंद घंटों पहले की। वक्त के थाल में लम्हे सिक्के बनकर करते हुए दिन सालों में तब्दील हो चुके हैं। हमारी बेटी 19 बरस की हो चुकी है। गुजरता वक्त तेजी से गुजरे या फिर पलक झपकते, ये नहीं पता मुझे। बस ये पता है 19 बरस बीत चुके हैं। हमारी बेटी को हमारे आंगन में उतरे और रीत रिवाज के मुताबिक हमारी मीना की रुखसती का वक्त करीब है। चाहे 2 साल बाद ही क्यों ना हो, तो क्या बेहतर नहीं? बेटी के लिए आने वाले पहले रिश्ते को बिना देखे इनकार करने के बजाय देख लिया जाए। आसफा बेगम ने अपने बात के इख्तिताम पर अमान साहब की तरफ देखा, जो हाथ में मौजूद कप को लबों से लगाना भूलकर अपनी शरीके हयात की बात सुन रहे थे। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। अमान साहब उनके पुकारने पर चौंके और अब आसफा बेगम की बातों से मुत्तफिक होकर सर असबात में हिला रहे थे। तो ठीक है, मैं रात में ही निम्रा से कहती हूँ अपनी खाला से कह दे, वो जब चाहे हमारे घर आ सकती हैं। आसफा बेगम ने कहते हुए अपने सामने रखी चाय ठंडी होकर अपना असल जायका खो चुकी थी। ये चाय तो ठंडी हो चुकी। आसफा बेगम ने कहते हुए अपने हाथ में मौजूद कप की तरफ इशारा किया तो अमान साहब ने भी अपना कप टेबल पर वापस रख दिया। मैं नई चाय बना कर लाती हूँ, आसफा बेगम ने अपनी जगह से उठते कहा। अमान साहब ने सर को हिलाने पर इक्तफा करते हुए अपने सामने रखे अखबार को फैलाकर अपनी नजरों के सामने कर लिया। निम्रा की खाला अपनी बेटी और निम्रा की वालदा के हमरा उनके घर उसी इतवार को पहुंच चुकी थी। मैं रुक नहीं पाई। जैसे ही निम्रा ने मुझे आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का इशारा दिया, मैंने फौरन ही अपनी बेटी को इसके ससुराल से आने का पैगाम भिजवा दिया। वो खातून कहते हुए आसफा बेगम के चेहरे की तरफ देख रही थी। आसफा बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, फिर बोली, रिश्ता होना या ना होना ये तो किस्मत की बात है, बाकी तो सब चलता ही रहता है। ये बात तो आपने ठीक कही, रिश्ता होना तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुझे यकीन है मेरे बेटे से मिलने के बाद आप इनकार नहीं कर पाएंगे। माशाअल्लाह से मेरा बेटा पढ़ा लिखा और बरसरे रोजगार है, शक्लो सूरत में भी खूबसूरत है। यानी आपकी बेटी के लिहाज से रिश्ता मुनासिब है। चाहे जितना मर्जी सोचने और समझने का टाइम ले लें, हमें कोई जल्दी नहीं। लेकिन बस अपनी मावरा को मुझे दे दे, मुझे मावरा बहुत अच्छी लगती है। वो खातून मावरा की तारीफें कर रही थी और फिर उसके बाद ही अतीका बेगम ने घर की दहलीज पकड़ ली। और फिर अतीका बेगम ने ही ठीक ही तो कहा था, कैसर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 5 माह के दौरान आसफा बेगम और अमान साहब ने हर लिहाज से जांच पड़ताल करने के बाद अतीका बेगम को रिश्ते के लिए हाँ कही थी। मावरा, जो उस सारे अरसे में सिवाय एक बार अतीका बेगम के सामने आने और हर बात से अनजान अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी, आसफा बेगम के बताने पर सटपटा सी गई। रिश्ता, शादी? मावरा को अभी उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब नाराज भरी नजरों से मां की तरफ देख रही थी। मैंने तुम्हारे पापा और भाई ने सोच समझ कर यह फैसला किया है। कैसर हर लिहाज से तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम देखना, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। आसफा बेगम ने बेटी को अपने साथ लगाते मुस्तकबिल की पेशंगोई की, लेकिन मावरा तो रोने लग गई। उसे यूं रोता देखकर आसफा बेगम के दिल में कितने ही खदशों ने सर उठाया। मावरा, क्या तुम किसी और को पसंद? आसफा बेगम अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि मावरा ने जोर जोर से अपने सर को नफी के अंदाज में हिलाया। तो फिर आसफा को बेटी के रवैये से सख्त उलझन हो रही थी। मैं आपको और पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मावरा कहते हुए मां के गले लग गई। क्या सच में यही बात है? सच में अम्मी, मावरा ने मुंह बनाते नाराजी से कहा। इस बार आसफा बेगम ने मुंह बनाकर बैठी
मावरा की चटाचट बलाएं ले डाली और फिर फैसल और निम्रा के आने के बाद ही रिश्ते को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया गया। बहुत बहुत मुबारक हो, अतीका बेगम ने खोए वाले रसगुल्ले को मुंह में डालते वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा। आपको भी बहुत मुबारक हो, आसफा बेगम ने जवाबन कहा। तो बस ठीक है, अभी मंगनी की डेट तय कर लेते हैं, फैसल ने कहते हुए अतीका बेगम की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट वाज़िह तौर पर मध्यम हुई थी। मंगनी जैसे फंक्शन करने में टाइम और पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरा मतलब है इस्लाम में तो बस निकाह की अहमियत को बयान किया गया है। ये दिखावे के रस्म रिवाज तो हम इंसानों ने बना रखे हैं। इंसान की ज़बान ही सब कुछ होती है। मावरा हमारी बेटी है। ये कहते हुए अतीका बेगम ने अपने पास बैठी मावरा को बड़े प्यार से अपने साथ लगाया। उसके माथे पर बोसा देकर अपने हाथ में मौजूद अंगूठी उतार कर मावरा की उंगली में पहना दी, जो उसकी उंगली में बहुत खुली थी। बाईं हाथ की दूसरी उंगली में रिंग पहनते ही घूम गई थी। लीजिए, आपकी तसल्ली के लिए हमने बाकायदा मंगनी की रस्म अदा कर दी, अतीका बेगम ने कहते हुए सामने प्लेट में रखी बर्फी मावरा को खिलाते हुए कहा और अपनी तरफ हैरत से देखती आसफा और अमान साहब की तरफ देखा, जिन्हें इस सब की तवक्को कहाँ थी। बात असल में यह है, मैं ऐसी फजूल खर्चियों में और दिखावे के तौर पर मुनक्किद किए गए फंक्शन से कहीं ज्यादा लड़की के असल हक यानी हक महर पर तवज्जो दूंगी। मेरी भी बेटी है और मेरी तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो। अल्लाह ना करे हमारे रिश्ते में कोई भी बदमज़गी हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहू के मुस्तकबिल की सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो दूंगी। मावरा के हक महर की बात करें, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या ऐसी फजूल खर्चियों पर हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें? अतीका बेगम के लहजे में हलावट थी, मिठास थी। आसफा बेगम और अमान साहब ही नहीं, वहां पर मौजूद रिश्तेदार भी हैरानी से अतीका बेगम की तरफ देख रहे थे। ऐसे लोग भला दुनिया में कहाँ मिलते हैं जो इस सोच के मालिक होते हों। यहां तो लोगों को हक महर पर नाराज होकर बारातों को वापस जाते देखा जाता है और अतीका बेगम खुद अपने मुंह से मावरा के मामू, खाला और चचा के चेहरों पर खुशी ही खुशी थी। खाना इंतहाई खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने के बाद चाय का दौर शुरू हुआ। हंसी बातों और कहकहों की आवाज अंदर कमरे में मौजूद मावरा के कानों में पड़ रही थी, जो पिछले 2 घंटे से अपना सर झुकाए अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को बेध्यानी में घुमाए जा रही थी। वो बैक वक्त 2 कैफियत का शिकार हो रही थी। वो खुश थी कि इस सब इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर बेहद खुश हैं, लेकिन हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके बहुत सारे अरमान थे और यहाँ तो पहले ही मरहले को इस्लाम की तालीमात और कफ़ायत शियारी की बात करके मावरा बेचैनी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की खिड़की से बाहर ढलती शाम को अब रात में मध्यम होते देख रही थी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही मनफी सोच रही हूं। इतने अच्छे मौके पर मुझे उदास कर देने वाली बातें नहीं सोचनी चाहिए। अच्छे गुमान बहुत कमाल का काम करते हैं। मावरा बड़बड़ाते पलटी और अपनी दराज में रखी कैसर की तस्वीर को निकाल कर देखने लगी। उसने इस्तेकाक भरी नजर कैसर के चेहरे पर डाली तो यूं लगा तसव्वुर में मौजूद कैसर की आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। मावरा ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों तले दबाया, फिर शर्माकर कैसर की तस्वीर को दराज में रखकर जैसे ही पलटी अपने अकब में खड़ी निम्रा भाभी को देखकर सटपटा सी गई। अच्छा जी, अभी से ये हाल है कि छुप छुप कर मौसूफ को देखा जा रहा है। निम्रा भाभी ने मावरा की लरसती पलकों तले ब्राउन आंखों में झांकने की कोशिश की तो मावरा ने शर्माकर अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपा लिया। यही नहीं, वहां भी यही हाल है। यकीन करो, कैसर ने मेरा सबके बीच बैठना मुहाल कर दिया था। ये लो, तुम उससे बात कर लो, निम्रा भाभी ने कहते अपना फोन मावरा की सिमत बढ़ाया। नहीं भाभी, मावरा ने अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाते जोर जोर से नफी में सर हिलाया।
लेकिन तब तक निम्रा कैसर को कॉल मिला चुकी थी। अभी पहली बेल पूरी गई नहीं थी कि दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। चलो जी, तुम दोनों ने तो लगता है पहली मोहब्बतों को पीछे छोड़ देना है। निम्रा ने कैसर के फौरन ही कॉल पिक करने पर खफीफ सा तंज किया था, तो जवाब में कैसर का कहकहा बेसाख्ता था। उसकी हंसने की आवाज स्पीकर से निकलकर निम्रा के पास खड़ी मावरा के कानों से भी टकराई थी। मावरा का दिल धड़का, रुखसार लाल हुए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, निम्रा फोन उसके कान से लगा चुकी थी। चलो तुम कैसर से बात कर लो, मैं बाहर मेहमानों के पास जा रही हूं। निम्रा उजलत भरे लहजे में कहकर वहां से जा चुकी थी, तो मावरा अपने नाम पर चौंक कर फोन की तरफ मुतवज्जो हुई, जहां कैसर उसका नाम पुकार रहा था। दिल धड़कने लगा। वो खामोशी से कैसर की बातें सुन रही थी। वो बस बीच में तुम मेरी बात सुन रही हो ना कहकर मावरा से पूछता, और उसकी हल्की सी आवाज में कहे गए जी को सुनकर फिर से बातों में मसरूफ हो जाता। उसे बोलने का बहुत शौक था और मावरा को उसे बोलते सुनना अच्छा लग रहा था। वो उसे बता रहा था उसने पहली बार निम्रा की बारात वाले दिन देखा था और पहली ही नजर में वो उसकी मोहब्बत का शिकार हो गया। वो कह रहा था, घर आने के बाद मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि शादी करनी है तो बस इसी लड़की से करनी है। फिर उसकी माँ कैसे निम्रा से इस माँ रिश्ते की बात करती रही, लेकिन निम्रा तजब्जुब का शिकार थी। उसे लग रहा था रिश्ता होने के बाद उसके रिश्ते में कोई बदमज़गी ना हो जाए। आखिर को फैसल की इकलौती और छोटी बहन का मामला है, लेकिन फिर बार बार कहने पर निम्रा ने फैसल से बात कर ही ली। 2 भाई, 1 बहन और माँ, वालिद का इंतकाल हो चुका था। फैसल के लिए, मावरा के लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट छोटी फैमिली थी। बहन की शादी हो चुकी थी, घर में 2 भाई और माँ, और फिर कैसर भी ठीक ठाक था, और यूं मेहनत के बाद बालातर हमारा रिश्ता हो ही गया। कैसर कहकर हंसा तो मावरा भी मुस्कुरा दी। मजीद चंद मिनट बात करने के बाद कैसर ने कॉल बंद कर दी थी। ये शायद कैसर से बात करने का असर था। मावरा जो कुछ देर पहले तक अजीब सी कैफियत में घिरी थी, अब मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर दिल से मुस्कुराई तो फिर मुस्कुराती ही चली गई। अल्लाह सभी बेटियों के नसीब अपनी मावरा जैसे करे। मेहमानों के रुखसत हो जाने के बाद मावरा की मां ने दिल से दुआ दी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, निकाह नामे में 20 तोले सोना, और वो भी लड़की के हक महर के तौर पर। आज के दौर में ऐसा कौन सोचता और करता है। आसफा बेगम की भाभी तो अभी तक अतीका बेगम की इस बात पर अंगश्ते बदनदां थी। अल्लाह मावरा के नसीब अच्छे करे, मामू ने कहते हुए अपनी शरीके हयात को घोरा था। हाँ हाँ, अल्लाह मावरा को हर बुरी नजर से बचाए, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, फरीहा बेगम ने खिसियानी होकर कहा, और फिर एक बार फिर आसफा और अमान साहब को मुबारकबाद देने लगी। वो सब बहुत खुश थे। अपने घर वालों को खुश देखकर मावरा भी बेहद खुश थी। शादी की तारीख मावरा के फाइनल एग्जाम्स के बाद रखी गई थी, यानी अभी पूरा 1.5 साल बाकी था। हम अच्छी तरह से मावरा की शादी की तैयारियां कर सकते हैं। अगर अतीका आंटी 20 तोले सोना हक महर में लिखवा रही हैं, तो तुम्हें भी शादी की तमाम तैयारियां शायाने शान तरीके से करनी चाहिए। फैसल ने माँ और बाप के चेहरे की जानिब देखते कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन 20 तोले जेवर की बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, कैसर की फैमिली अच्छी खासी है, लेकिन अमान साहब ने बात को अधूरा छोड़ा था। आपको तो बिला वजह वहम करने की आदत है। उन्होंने कौन सा ये बात हमारे सामने की है, बल्कि हमारे पूरे खानदान के अलावा अपने खानदान और दामाद के सामने ये बात की है, अतीका बेगम ने कहा। निकाह नामे पर जेवर मुअज्जल लिखवाएंगे, ये बात भी उन्होंने खुद की है, हमने तो उनसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की। आसफा बेगम को अमान साहब की फिक्रमंदी एक आंख नहीं भाई थी, इसीलिए कदरे तेज लहजे में बोलती चली गई। हाँ, अम्मी ठीक कह रही हैं बाबा, हमें किसी भी बदगुमानी को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए।
فیصل نے ماں کی بات میں ہاں لائی تو امان صاحب کندھے اچکا کر رہ گئے۔ ماورا کالج سے گھر واپس آئی تو آصفہ بیگم رضیہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ کیا ہوا، کوئی مہمان آ رہا ہے؟ ماورا نے سجی ہوئی ٹرالی کی طرف دیکھتے ماں سے سوال کیا۔ مہمان آ رہے ہیں، بلکہ آ گئے ہیں، تمہارے سسرال والے آئے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ آصفہ بیگم نے مغرور سے لہجے میں بیٹی سے کہا۔ یہ لوگ پھر آ گئے؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو فیصل بھائی اور نمرا بھابھی سے ملنے آئے تھے جب وہ واپس جا رہے تھے، آج پھر؟ جانے کیوں ماورا جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ ماورا، آصفہ بیگم نے بیٹی کو خشمگین نظروں سے گھورا، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی کہ تم کسی کے آنے پر ایسے ریئیکٹ کرو، وہ بھی اپنے سسرال والوں کے آنے پر۔ آصفہ بیگم نے کہا تو ماورا نے فوراً ہی اپنے دائیں کان کو سوری کے انداز میں پکڑا، پھر جلدی سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب گئی۔ ماورا نے فریش ہونے کے بعد کپڑے تبدیل کیے، ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی جب رضیہ اسے بلانے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ ماورا، اچھا میں 5 منٹ میں آتی ہوں، ماورا نے کہہ کر اپنے لمبے بالوں کو باندھا اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر سر پر سیٹ کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ السلام علیکم، ماورا ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی جھک کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ، وہاں کیوں رک گئی، میرے پاس آ کر بیٹھو، عتیقہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو بہو کے لیے پھیلا دیا تھا۔ ماورا ہر بار ان کے ایسے محبت بھرے مظاہرے پر جھجک جاتی تھی، اس وقت بھی وہ ماں کا اشارہ کرنے پر عتیقہ بیگم اور صبا کے درمیان آ بیٹھی۔ چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عتیقہ بیگم نے چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھا اور آصفہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ میں اس لیے آئی تھی کہ میں نے جو رنگ ماورا کو پہنائی تھی وہ اس کے ہاتھ کی انگلی میں بہت کھلی ہے، وہ رنگ آپ مجھے واپس کر دیں، میں ماورا کو دوسری رنگ دینا چاہتی ہوں تاکہ بچی ہاتھ میں پہنے تو رکھے۔ کیا فائدہ ایسی رنگ کا جو انگلی میں آئے نہ اور دراز کی زینت بن کر پڑی رہے؟ میری بیٹی اپنے ہاتھ میں رنگ پہنے گی تو خوش تو ہوگی نا؟ عتیقہ بیگم نے کہتے اپنے پاس بیٹھی ماورا کو اپنے ساتھ لپٹاتے کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ماورا جاؤ آنٹی کو رنگ لا کر دے دو، آصفہ بیگم نے ماورا سے کہا۔ ماورا اپنی جگہ سے اٹھی اور عتیقہ بیگم کی انگوٹھی لا کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے اس سے بھی پیاری رنگ لے کر آؤں گی، عتیقہ بیگم نے ہتھیلی پر سجی رنگ کو اپنی انگلی میں سجاتے ہوئے ماورا سے کہا تو ماورا مسکرا کر سر کو جھکا کر رہ گئی۔ 10-15 منٹ کے بعد عتیقہ بیگم اپنی بیٹی کے ہمراہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے، بیٹھیے نا، کھانا کھا کر جائیے گا، آصفہ بیگم نے آداب میزبانی نبھائے تھے۔ نہیں مجھے بہت کام ہے، ابھی سنار کے پاس بھی جانا ہے، اور بھی چھوٹے موٹے بہت سے کام ہیں، کھانا پھر کبھی صحیح۔ نہیں بلکہ آپ بھی امان صاحب کے ساتھ ہمارے گھر کا چکر لگا لیجیے گا، کیسر تو آپ لوگوں کا دیوانہ ہو گیا ہے، آپ کے آنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ عتیقہ بیگم نے آگے بڑھ کر آصفہ بیگم سے گلے لگتے کہا۔ جی ضرور، داماد کے ذکر پر آصفہ بیگم خوشی سے نہال ہوئی تھی۔ وہ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد واپس آئیں تو رضیہ کچن صاف کرتی ہوئی نکلی۔ بیگم صاحبہ ایک بات کہوں، آپ برا مت منانا، رضیہ نے کہا۔ ہاں بولو، آصفہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، انہیں اپنی گردن کے پٹھے میں کھچاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جہاں آپ نے ماورا بی بی کا رشتہ طے کیا ہے نا، یہ لوگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، رضیہ کہتے ہوئے آصفہ بیگم کے پاس قالین پر آ بیٹھی۔ نہیں مطلب آپ خود سوچیں، کنجوسی کی حد ہے، ہونے والی بہو کی انگلی میں سب کے سامنے اپنی انگوٹھی پہنا دی تھی اور آج وہ لینے بھی آ گئی، اور اگر اتنی ہی ضروری تھی ان کے لیے اپنی انگوٹھی تو پہلے ماورا کے لیے رنگ خریدتی، اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنا کر پھر اپنی انگوٹھی مانگ لیتی، اپنی انگوٹھی بھی لے گئی۔ رضیہ نے جانے کیوں بات کے آخر سے حصے کو منہ ہی منہ میں
बिदबिदाना जरूरी समझा। आसफा बेगम के दिल में भी ये बात आई तो थी, वो भी उलझी थी। जहां रिश्तेदारी हो वहां चीजों की क्या अहमियत देनी। आसफा बेगम ने रजिया से कहा था, मगर देखा ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी मावरा की तरफ था। सोने चांदी से बेटियां मोहब्बत और इज्जत से अपने घरों में बसती होती तो सारे अमीर लोगों की बेटियां हंसी खुशी अपने घरों में रहती। दिलों में गुंजाइश और मोहब्बत हो तो छोटी छोटी बातें खुद ब खुद इग्नोर हो जाया करती हैं। और फिर अतीका बेगम कहकर गई हैं वो सुनार की दुकान पर ही जा रही हैं। इसका मतलब तो यही है ना, वो खुद मावरा को कहकर गई हैं कि उसके लिए रिंग लेनी है तो वही लेने गई होंगी। छोटी छोटी बातों को यूं सर पर सवार करना कहाँ की अक्लमंदी है। और वैसे भी रजिया, तुम अपना दिमाग ऐसी बातों में मत चलाया करो, बल्कि अपने हाथों को चलाया करो। चलो जल्दी से जाकर मावरा के लिए रोटी उतार दो, मेरी बच्ची सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई थी। आसफा बेगम ने कहते हुए दरवाजे में खड़ी मावरा के लिए अपने दोनों बाजुओं को फैला दिया। मावरा बिना कुछ कहे मां की मेहरबान बाहों में समा गई। फिर कितने ही दिन आसफा बेगम अतीका बेगम की आमद की मुंतजिर रही थी। ये बात तो उनके दिल में भी थी कि मंगनी के नाम पर पहनाई गई अंगूठी के मुतबादिल दूसरी अंगूठी मावरा को दी जानी चाहिए। वो भी तब जब अतीका बेगम खुद मावरा के सामने कहकर गई थी। और जाने किस ख्याल से मावरा 2-3 बार आसफा बेगम से अंगूठी के बारे में पूछ चुकी थी। अम्मी, आंटी झूठ बोलकर वो रिंग ले गई हैं। रिंग की बात नहीं है, वो तो मुझे वैसे भी कहती तो मैं दे देती, वो तो उन्हीं की रिंग थी। लेकिन मावरा की आंखों के साथ साथ उसका लहजा भी भर आया था। इतनी छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत नहीं देते बेटा, हो सकता है मसरूफ हो गई होंगी या कोई और मसला होगा। मैंने और तुम्हारे बाबा ने बहुत सोच समझकर इस रिश्ते को हाँ की है, तुम क्यों फिक्र करती हो। बेटी के सर पर हाथ फेरते आसफा बेगम ने तसल्ली भरे लहजे में कहा था। लेकिन वो भूल गई थी कि यह दुनिया है, 7 रंग की दुनिया। दुनिया के हर माँ बाप अपनी बेटियों के अच्छे नसीब का फैसला करते हुए हर तरह की छानबीन और तसल्ली कर लेने के बाद ही अपनी बेटियों के हाथ किसी दूसरे के हाथ में देते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हम इंसानों को पहचानने में, उन्हें समझने में गलती कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आसफा बेगम और अमान साहब के साथ हुआ था। हुआ यूं था कि मावरा की शादी के दिन रखे जा चुके थे। उसकी शादी से 1 माह पहले फैसल भी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ चुका था। हर चीज मावरा की पसंद की थी। खूब इंतजामात किए थे कि जब शादी से 2 दिन पहले अतीका बेगम अपनी बेटी और छोटे बेटे के हमरा मेहंदी और बारात का जोड़ा लेकर मावरा के घर आई थी। छोटे से अटैची केस को खोला गया। मावरा तो अपनी चीजों को देखते ही बेख्तियार रोने लगी। दोनों ही सूट जाने कहां से लाए गए थे। लहंगे का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल था। मावरा के साथ खुद भी आसफा बेगम को बेइंतहा दुख हुआ। कुछ तो सोचना चाहिए था आपको, हमारी बेटी के लिए ऐसी चीजें लाते हुए। आसफा बेगम खुद को कहने से रोक नहीं पाई थी। क्या मतलब? उनके तेवर फौरन ही बदले थे। देखें, हमने तो आपसे पहले ही कह दिया था, फजूल शो शाह में हम पैसे खर्च करने वाले नहीं। हम मुसलमान हैं और शरई कामों पर ज्यादा ध्यान देंगे। आपकी बेटी को 20 तोले जेवर हक महर में देने का मतलब आप जानती हैं, यानी तकरीबन 25 लाख हम आपकी बेटी की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, हक महर में लिखवा रहे हैं तो देंगे भी। अब हम हक महर की रकम अदा कर सकते हैं या फिर लाखों के पैसे यूं ही जाया कर दें, वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और वैसे भी मावरा ने ये कपड़े पहनकर हमारे घर ही आना है, तो फिर जब हमें कोई एतराज नहीं तो आप भी एतराज ना करें। सबा ने तेज तेज लहजे में कहते आसफा बेगम को खामोश करवा दिया। आसफा बेगम ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन अमान साहब ने हाथ उठाकर अपनी शरीके हयात को कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ठीक है, आप जो कह रही हैं ठीक है, मुझे मेहमानों के सामने मजीद कोई तमाशा नहीं बनाना। अमान साहब ने सारी गुफ्तगू को समेट लिया। मावरा के ससुराल वालों के जाने के बाद
आसफा बेगम ने शिकवा भरी नजरों से शौहर की तरफ देखा। ये खुशी की बात होती है और वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे। अपनी दानिश में वो शरई शादी करना चाहते हैं, मतलब सादगी से। बस आप भी रहने दें, उनकी सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं आपको। अगर शरई शादी करना चाहते हैं तो लाखों का सामान लेते, मना क्यों नहीं किया? पहनौनियों के नाम पर इतने महंगे सूट क्यों लिए? और तो और कैसर जो भी पहन कर आएगा आपकी तरफ से पहन कर आएगा। ये कहने के बाद हजारों रुपए की शॉपिंग करते हुए उन्हें इस्लाम याद नहीं आया। आसफा बेगम को आज पहली बार अपने होने वाली समधन पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर अमान साहब और फैसल के समझाने पर वो ऊपरे दिल से ही सही खामोश हो गई थी। दूसरे खर्चों के साथ साथ आसफा बेगम मावरा को अपने साथ ले जाकर उसकी पसंद का लहंगा और मेहंदी का एक सूट दिलवा लाई थी। मावरा का लहंगा और सूट फैसल को और अमान साहब को दिखाते हुए आसफा बेगम अपने दिल में बसते खदशे को जबान पर लाने से ना रोक सकी थी। मुझे नहीं लगता कि वो हक महर भी लिखवाएंगे। वो जो कह रहे हैं अमान साहब, उनसे कहें शरई शादी कर रहे हैं तो हक भी शरई मुकर्रर कर लें, बिला वजह की बदनज़मी ना हो जाए। आसफा बेगम ने हाथ में पकड़ा सूट सामने टेबल पर रखते मुतासिफाना लहजे में कहा, अम्मी आप ऐसे क्यों परेशान हो रही हैं? और ठीक है ना, जहां सब कुछ हमने किया वहां लहंगा और सूट भी खरीद लिया। आप खामोखा परेशान ना हो और ना ही हमें करें। फैसल कहता हुआ मां के करीब आ बैठा और उन्हें अपने साथ लगा लिया। बेटे और शौहर के साथ साथ बेटी को परेशान देकर आसफा बेगम ने खुद को संभाला दिया और सब कुछ अल्लाह की रजा पर छोड़ दिया। अब सब रिश्तेदार कल यहां पहुंचने वाले थे। ऐसे में अब वो क्या खुद भी परेशान होती और बाकी सबको ही करती। माशाअल्लाह, ये लहंगा हमारी बेटी पर कितना अच्छा लगेगा ना। सुर्ख लहंगे का कामदार दुपट्टा उठाकर फैलाते हुए आसफा बेगम ने कहा, अल्लाह हमारी बेटी को नजरे बद से बचाए। अमान साहब ने दिल ही दिल में कहा और चेहरे को दूसरी जानिब कर लिया ताकि कोई भी उनकी आंखों में दर आने वाली नमी को देख ना पाए। बेटी को रुखसत करने का ख्याल हर बाप को यूं ही अफसुर्दा कर दिया करता है। अमान साहब ने सोचा और फिर सर को झटक कर मुस्कुराकर आसफा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुए, जो अब उन्हें बेटी की चूड़ियां दिखा रही थी। हक महर वही मुकर्रर हुआ था जो अतीका बेगम ने कहा था। आसफा बेगम जो दिल में 2 दिन पहले की खटास लेकर बैठी थी, अब दिल ही दिल में खूब शर्मिंदा हो रही थी। पहली बार किसी बेटे की मां का दिल इतना बड़ा देखा है। हॉल में मौजूद सब रिश्तेदार सताइश भरी नजरों से अतीका बेगम और उनके साथ आई बारात को देख रहे थे। हर कोई आगे बढ़कर अतीका बेगम से मिल रहा था और उनके इस फैसले को सराह रहा था। दुल्हन बनी मावरा अपने ससुराल वालों की तारीफें जबानी सुन सुनकर निहाल होती जा रही थी। ऐसा ससुराल वाकई किस्मत वालों को मिलता है। दिल में जो गिले शिकवे थे वो सब खत्म हो रहे थे। कुछ देर के बाद ही सही मावरा ने खुद को बदगुमान और बदजन होते महसूस किया, लेकिन अब वो खुद शर्मिंदा हो रही थी। मावरा रुखसत होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। मुख्तलिफ रस्मों के बाद उसकी इकलौती नंद ने मावरा के इर्द गिर्द बैठी अपनी कजन्स के झुरमट को हटाया और मावरा को सहारा देकर उसके कमरे में ले आई। मावरा खुद भी बैठे बैठे बेइंतहा थक चुकी थी। सबा ने सहारा देकर उसे बेड पर बिठाया और जल्दी से खुद उसके सामने आ बैठी। हाय मावरा, तुम्हारी अम्मी ने कितनी प्यारी रिंग दी है मुझे। सबा ने अपने हाथ में पहनी रिंग को अपनी नजरों के सामने किया। अम्मी के कंगन भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी, थैंक यू सो मच। कहते हुए सबा मावरा के गले लग गई थी। अच्छा, अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आई और साथ में कैसर को भी उसके दोस्तों के चुंगल से आजाद करवाती हूं। हंसते हुए कहकर अपनी जगह से उठी थी। कैसर के नाम पर मावरा ने शर्माकर अपने सर को झुका लिया। दरवाजे पर खटका सा हुआ। आने वाला कैसर ही था। मावरा ने शर्माकर अपने सर को झुकाया। अस्सलामुअलैकुम,
कैसर ने सलाम किया। मावरा ने आहिस्तगी से उसके सलाम का जवाब दिया था कि कैसर हौले से कहकहा लगाकर हंस पड़ा। सच में ये इतनी प्यारी बीवियां बाद में कहाँ खो जाती हैं। अब देखो ना, तुम्हारा जवाब सुनने के लिए मुझे अपनी पूरी तवज्जो तुम पर मबजूल करनी पड़ी है, और शादी के चंद माह के बाद। कैसर की बात पर मावरा भी मुस्कुराई थी। सर झुकाए झुकाए उसकी गर्दन में दर्द होने लगा था। वो चाहती थी कैसर उसे खुद सर ऊपर करने का कहे, लेकिन मावरा को ऐसा कुछ कहने का तकल्लुफ नहीं किया, बल्कि उसकी बात पर मावरा का झुका हुआ सर खुद ब खुद ऊपर की जानिब उठ गया। वो जो हक महर लिखवाया है वो मैं अदा नहीं कर सकता। तुम। कैसर रुका था। तुम मुझे वो हक महर माफ कर दो। तुमने मुझे हक महर माफ कर दिया ना? अपनी जानिब हैरत से देखती मावरा की आंखों में देखते कैसर ने सवाल किया। कुछ छन करके टूटा। वो अभी इसी बात पर गौर कर रही थी कि जब कैसर अपनी जगह से उठा और साइड टेबल की दराज से एक कॉपी पेंसिल निकालकर मावरा के सामने खोल कर रख दी, जिस पर लिखा था, मावरा खुद अपनी मर्जी और खुशी से कैसर को हक महर माफ कर रही है। तुम यहां साइन कर दो। कैसर ने तहरीर के नीचे खाली हिस्से पर अपनी उंगली रखते कहा। वो जो चंद लम्हे पहले टूटा था वो मावरा का दिल था, जो कैसर के इस अंदाज और बात पर टूटा था, और अब उसका दिल टूटकर कितनी किरचियों में बटा था ये तो बस मावरा जानती थी। करो भी साइन, फिर मैंने अभी तुम्हें मुंह दिखाई भी देनी है। कैसर ने खामोश बैठी मावरा को मुखातिब किया। इस सिचुएशन और इस वक्त मावरा कैसर से क्या कहती? चंद घंटों की दुल्हन आखिर क्या बोल सकती थी? मावरा ने खामोशी से कैसर के हाथ से पेंसिल ली और साइन कर दिए। थैंक यू सो मच। अब एक बार मुंह से भी कह दो। इस्लाम की रूह से भी ये जरूरी है ना? कैसर ने मावरा के दस्तखत को देखते जरा की जरा मावरा के चेहरे की तरफ देखा और फिर से कॉपी की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने आपको अपना हक महर माफ किया। मुश्किल से ही सही मावरा ने यह जुमला अदा कर दिया था। थैंक यू। ये हुई ना प्यारी बीवी वाली बात। एक मिनट, मैं पहले इसे संभाल कर रखा हूं। कैसर ने बड़ी एहतियात से कॉपी संभाली और उठकर दीवार गिर अलमारी में मौजूद कैबिनेट की दराज में कॉपी रखकर लॉक लगाकर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। अच्छा, अब मैं तुम्हें मुंह दिखाई दूं। सोचो, मुंह दिखाई में क्या होगा? मावरा के हाथ थामते कैसर ने मावरा से दरियाफ्त किया। मुझे क्या पता, मावरा ने आहिस्तगी से कहा। अभी चंद लम्हे पहले कैसर ने जो कहा था मावरा को दुख हुआ था। अगर इतना हक महर देने की इस्तिताअत नहीं थी तो दूसरी बातों की तरह ये बात भी क्लियर की जा सकती थी, और वैसे भी ये बात खुद कैसर के घर वालों ने की थी। इनकी तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं था। फिर ऐसा टोपी ड्रामा करने की क्या जरूरत? फिर भी गेस तो करो, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट देने वाला हूं? कैसर ने मावरा के हाथ को हल्के से दबाते जिद की थी। कोई रिंग होगी। मावरा को अब कैसर के अंदाज से उलझन हो रही थी, इसलिए अपनी जान छुड़ाने के लिए उसने अंगूठी का कह दिया। हाँ हाँ, कैसर ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारी मुंह दिखाई में मैं तुम्हें वो दूंगा जो बहुत कीमती है, और आज तक किसी ने भी अपनी दुल्हन को वो नहीं दिया होगा। कैसर गर्दन को अकड़ाए कह रहा था। अब की बार मावरा सच में उलझ गई थी। क्या कोई डायमंड रिंग है या फिर डायमंड सेट? उसका दिल जोर से धड़का। अच्छा चलो, तुम्हें मुंह दिखाई दे ही देता हूं। कैसर बैठे बैठे साइड टेबल की तरफ झुका और हाथ डालकर सुर्ख कवर में लिपटा कुरान पाक निकालकर मावरा की तरफ बढ़ा दिया। फौरी तौर पर तो मावरा को सुर्ख कवर में लिपटी शय की समझ नहीं आई। वो उलझी नजरों से कैसर की तरफ देख रही थी। अरे भाई, मेरी तरफ देखती रहोगी या खोल कर भी देखोगी? कैसर के कहने पर मावरा ने अपने हिनाई हाथ कैसर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर से गोल्डन कलर के कवर वाला कुरान पाक उसके हाथ में था। अच्छा है ना? कैसर पुरजोश अंदाज में मावरा से पूछ रहा था। क्या कहती सिवाय अपना सर अजबात में हिलाने के?
देखा, ऐसी मुंह दिखाई किसी को नहीं मिली होगी, कैसर पुरजोश अंदाज में कह रहा था। मावरा के पास बोलने और कहने के लिए कुछ नहीं था। जब अगले दिन मावरा के कजन्स ने उससे मुंह दिखाई के बारे में पूछा तो कुरान पाक का सुनकर सभी खामोश हो गए। ठीक है, कुरान पाक ही दिया है, लेकिन साथ में कुछ और भी तो देना चाहिए था। मावरा की कजन ने निम्रा भाभी की तरफ देखते कहा तो निम्रा ने फौरन ही, मुझे इस मामले में मत घसीटे, लापरवाही से अपने कंधों को उचका दिया था। मावरा सर को झुकाए अपनी हथेली पर सजी मेहंदी को देखते हुए कितने ही आंसू अपने अंदर उतार चुकी थी। वो अपने वालिदैन को अफसरदा और उदास नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने हक महर को माफ करवाने वाली बात अपने घर वालों से छुपाई थी। जिंदगी शायद मावरा का अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। ये उसकी शादी के एक हफ्ते बाद ही की तो बात थी। मावरा अपने कमरे में सो रही थी। उसकी आंख खुली तो प्यास के शदीद एहसास ने उसे उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। साइड टेबल पर बड़ा खाली जग उसका मुंह चढ़ा रहा था। ओफो! मावरा ने जग को वापस टेबल पर रख दिया, तकिए के पास पड़े अपने दुपट्टे को खींचकर और पांव में स्लीपर अड़ाकर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। लाउंज से उसके ससुराल वालों के हंसने की आवाज उसके कानों से टकराई। शायद वो सब अपनी बातों और हंसी में इतना मशगूल थे कि उन्हें मावरा के दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई नहीं दी। अम्मी, वैसे आपका नुस्खा अच्छा खासा नंबर ले गया है। वो क्या कहते हैं, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चौखा आए। मतलब हमने पहले दिन ही हक महर के नाम पर 20 तोले जेवर का कहकर मावरा के घर वालों के साथ साथ पूरे खानदान से भी वाह वाह समेट ली। अब तो हर कोई हमारा गर्विदा बना हुआ है। हर कोई अब नबील को रिश्ता देने की दौड़ में शामिल हो गया है। सबा ने कहते हुए मां की तरफ सताइशी नजरों से देखा और एक बार फिर अपने हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। तुम हंस रही हो? अम्मी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। 20 तोले सोना मतलब? कैसर ने जैसे झुरझुरे ली थी। हाँ, तो अम्मी ने ही तुम्हें इसका हल भी तो बता दिया था कि कमरे में जाते ही सबसे पहले हक महर माफ करवाने की बात कर लेना। वो वक्त ही ऐसा होता है जब बेचारी लड़की ना हाँ कर सकती है और ना ही इनकार। बस वही कर सकती है जो उसका मजाजी खुदा उस वक्त कह रहा होता है। और फिर बताओ, अम्मी की बात ठीक साबित हुई ना? कर दिए ना मावरा ने साइन? सबा की हंसी जरा थमी थी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। कैसर ने गहरा सांस लेते अपनी कमर को सोफे की पुर्ज से लगाया। लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही कंजूसी की हद कर दी थी। चलो, हमने आगे पीछे तो उसे कुछ नहीं दिया था। मैंने तुमसे कहा था मुंह दिखाई के लिए सोने की हल्की सी अंगूठी ले आना, लेकिन तुम तो कुरान पाक ले आए। चलो, कुरान पाक के साथ साथ तुम उसे रिंग भी दे देते। आखिर को उसके माँ बाप ने भी तो हमें इतना कुछ दिया है। अतीका बेगम ने कहा, अरे अम्मी जान, जाने दें, कुरान पाक से अच्छा क्या है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सला। कैसर ने ढिठाई से हंसते हुए कहा, इंतहा के कंजूस हो तुम। सबा ने कैसर के बाजू पर हाथ मारते कहा, अम्मी, अगर उसके घर वालों को पता चल गया कि हमने हक महर माफ। कैसर किसी खदशे के तहत सीधा होकर बैठते बोला, अरे एक बार शादी हो जाए फिर कोई फिक्र की बात नहीं होती। पता चल भी जाए तो क्या, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का मामला है, कोई तीसरा इसमें कुछ नहीं बोल सकता। अतीका बेगम ने हाथ झटकते बेटे को तसल्ली दी और अंदर अपने कमरे में खड़ी मावरा अपने ससुराल और शौहर की जहनी पस्ती देखकर वापस पलटी और शिद्दत से रो दी थी। हम अक्लमंद लोग कैसे होते हैं, दिखावे, झूठ, धोखाधड़ी को अपनी ताकत समझते हैं, खुद को अक्लमंद समझ रहे होते हैं। दूसरों के जज्बात को पांव तले रौंदना, इस्लामी अहकामात का मजाक बनाना, ये तो जैसे मामूल का हिस्सा बन गया है। उस दिन मावरा के अंदर कितना कुछ टूट गया था। एतबार, यकीन, अपनापन, उसने इस सब से हाथ छुड़ा लिया था। उसे कैसर से उलझन होने लगी थी। इससे पहले कि वो उस उलझन में खुद के साथ कुछ कर लेती, फैसल भाई चंद दिनों के लिए उसे अपने घर रहने के लिए ले आए थे।
घर आते ही उसने सोच लिया था वो अब वापस यहाँ नहीं आएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसके कदमों तले जन्नत रख दी गई थी। वो जो कैसर और उसके घर भी वापस ना जाने का सोच कर आई थी, चुपचाप वापस आ गई। जिंदगी गुजर रही थी। अब तो उसकी शादी को भी 2 साल होने वाले थे। अब घर में नबील की शादी का शोर उठने लगा, यानी एक और मावरा के साथ वही सब होगा जो कल उन्होंने इस मावरा के साथ किया था। लेकिन नहीं, मावरा अपने चेहरे पर बिखरे आंसुओं को साफ करती उठ बैठी। मैं इन लोगों को किसी और के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। इस्लाम आसानी का दीन है जो हमें हर मामले में आसानी देता है, लेकिन अतीका बेगम और कैसर जैसे लोग इन अहकामात को बस अपने मतलब और फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ना तो उन लोगों को हक महर का मजाक बनाने देगी और ना ही किसी और लड़की के जज्बात को यूं रौंदने देगी। मावरा दिल ही दिल में सोचती अपनी जगह से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर की सिमत बढ़ गई, जहां वो सब अभी तक महफिल जमाए बैठे थे। वो कमजोर नहीं थी, लेकिन कैसर की कंजूसी और जहनियत से वो वक्ती तौर पर खुद को कमजोर कर गई थी। लेकिन अब वो बोल रही थी, उन्हें बता रही थी। वो उन सब की असलियत जानती है। लाउंज में बैठे सभी अफराद हैरत से मावरा की तरफ देख रहे थे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मावरा सब जानती है। जहां किस्मत हो वहां रिश्ते जुड़ जाते हैं आंटी, लेकिन झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी भी बार-आवर दरख्त की सूरत इख्तियार नहीं करते। हक महर कोई मजाक नहीं है जो आप लोगों की बेटियों के साथ करते फिरते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक लड़की के लिए इनाम है, एक लड़की की सिक्योरिटी है जो खुदा ने किसी दूसरे माँ बाप के हाथ से अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे इंसान के हाथ में देते हुए दी है। कल मेरा हाथ था कैसर और आज किसी और का हाथ होगा, लेकिन आने वाले कल में यही हाथ तुम्हारी बेटी का होगा। मावरा ने कहते हुए कैसर की गोद में बैठी ऐना की तरफ इशारा किया। माँ बाप का दिल अपनी औलाद के बारे में बहुत नाजुक होता है, और आप जैसे लोग। मावरा रोना नहीं चाहती थी, लेकिन रो रही थी। कैसर बोलना चाहता था, लेकिन न जाने क्या बात थी जो वो बोल नहीं पा रहा था। वाह वाह, दिखावे तारीफों के लिए और बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप लोग तो हद से ही गुजर गए। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। आप लोगों को अल्लाह की पकड़ से खौफ नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। कल को माँ बाप का किया औलाद के सामने आता है, और मैं नहीं चाहती अल्लाह के अहकामात का मजाक बनाने की पादाश में कैसर को जो सजा मिले उसमें मेरी बेटी भी हिस्सेदार हो। मावरा रो रही थी, बोल रही थी, और बाकी सब लोग हैरत के समंदर से निकलकर शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिर रहे थे। कितनी ही देर गुजरी थी मावरा रोते हुए कि जब उसके घुटने पर किसी का हाथ आन ठहरा। रोती हुई मावरा ने सर उठाकर देखा तो उसके करीब अतीका बेगम बैठी थी। तुम ठीक कह रही हो, हमें अल्लाह की पकड़ से डर नहीं लगता। अपनी वाह करवाने के लिए मैं अतीका बेगम की हलक में आंसुओं का गोला अटका। पता नहीं अल्लाह मुझे इस सोच और हरकत पर माफ करता भी है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूं बेटा। अतीका बेगम ने अपने दोनों हाथों को मावरा के सामने जोड़ा। दुनिया की नजरों से वो इस सब को छुपा गई थी, लेकिन इन 2 सालों में कितनी बार उनके ज़मीर ने मावरा की हक महर को झूठ बोलने, धोखा देने पर कई बार उनकी सरजनिश की थी, लेकिन अतीका बेगम पर कोई ना कोई तावील या दलील देकर अपने ज़मीर को सुला दिया करती। लेकिन आज उनके ज़मीर ने जो लान तान करना शुरू की, ये उसी का नतीजा था जो वो मावरा के सामने हाथ जोड़े बैठी थी। मुझसे माफ़ी नहीं मांगे आंटी, अल्लाह से माफ़ी मांगे। हमारा रब बहुत मेहरबान है। अगर हमारी गलतियों की सज़ा हमें फौरी मिल जाए तो शायद हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। वो हमें ढील देता है बस इसलिए कि हम अपनी गलतियों का एतराफ़ खुद करें और माफ़ी खुद मांग लें।
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔